جناب بسم اللہ، بیٹھے سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا میں نے پہلے بھی بولا کہ ہم نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، جو اسمبلی الیکشن کا جو چناؤ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے کل بھی بولا کہ ایسے ٹریڈیشنل سیاست زانہ کہیں ایسے دوست سے تو وہ میں رات پٹھن تھوڑا ہاؤ جوائننگ تھے ہاؤ، اس سے لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ جو نئے نئے لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں، یا جو باقی پارٹیز سے ابھی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں. میں ان سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں. اور آج ہمارے ساتھ جو جڑے ہیں وہ ہمارے اس حلقہ پریزیڈنٹ اوس نیشنل کانفرنسز محترم وار صٲب رنگ بل سے بسان امس سرپنچ لری ڈورا جو ارشاد احمد خان صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں. ان کے ساتھ ہمارے جو دوست ہیں یہ ہمارے جو طارق صاحب ہیں، یہ جو ہماری بیکری اسٹیشن ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں. اور میں ان سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جو سرپنچ صاحب ہمارے لری ڈورا سے ہیں، انہوں نے کافی کام کیا ہے ڈیولپمنٹ کے فرنٹ سے، اور سماجی کارکن بھی رہے ہیں. ان کا میں نے کام خصوصاً جو ہماری ملاقات زیادہ رہی جب میں پریزیڈنٹ میونسپل کونسل بارہمولہ تھا، اور کافی ان کے جو کام ہوتے تھے لوگوں کے ریلیٹڈ ہوتے تھے اور لوگوں کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور ہمارا جو ذہن اور سوچ تب سے ملی. اور اس کے ساتھ ساتھ وار صاحب جو ہے جو بہت ہی پرانے نیشنل کانفرنس کے بڑے ورکر رہے ہیں، انہوں نے بہت ہی کام کیا ہے نیشنل کانفرنس کے لیے، اور یہ ابھی حلقہ پریزیڈنٹ تھے بارہمولہ میں. تو میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو ویلکم کرنا چاہتا ہوں، آپ جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں آج. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو ساتھ ہے یہ ایک نوجوان کا ساتھ ہے، ان کا جو ساتھ ہے یہ بارہمولہ کی تعمیر و ترقی کا ساتھ ہے، یہ اس بارہمولہ کی خوشحالی کا ساتھ ہے. اور ان سے جب میں نے بات کی، انہوں نے جب بولا کہ خصوصاً وار صاحب کی بات کروں، اور وار صاحب نے مجھے پہلے بولا کہ ہم نے نیشنل کانفرنس کے لیے بہت کام کیا ہے، لیکن اس باری ہمیں لگتا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، اور ہم آپ کے ساتھ اوپن آئیں گے، آپ کے لیے ڈور ٹو ڈور کیمپین کریں گے. تو باقی جو ہمارے ارشاد صاحب ہے، یہ بھی ان کو کافی پارٹی سے آفر آ رہے تھے، کافی جگہ سے اس کو لوگ بلا رہے تھے، لیکن انہوں نے بولا کہ جس طرح کا ہم نے آپ کا جذبہ دیکھا، جو کام دیکھا، ہم آپ کے کام کے لیے آپ کے ساتھ جڑے ہیں، اور بارہمولہ کی جو فلاح و بہبود کے لیے یہ ہمارے ساتھ جڑے. ہم آپ کے ساتھ سوالات جو بھی ہوں گے وہ بعد میں آپ پوچھے گا، لیکن میں پہلے درخواست کروں گا وار صاحب کو مختصراً یہاں پہ کچھ الفاظ اپنے بتائیں. واللہ خیر المحافظین. مجھے ات پہ روشنی تراؤن تھوڑا سا. بہت واریاہ کال پر نیشنل کانفرنس وابستہ، بہت واریاہ محنت انتھک محنت. یم سات عمر صاحب الیکشن تم سات کر رات رو محنت زبردست، مگر ات گو پوتس اخ پرابلم اخ کھڑا اتہ نیشنل کانفرنس اصل امیدوار تمن 60 وری 70 وری گومت نیشنل کانفرنس مز قربانی دِوان، تم آئی اگنور کرنا. اس سوچ پتہ کہ ییٚلہِ یہِ گوٚو حال سانٮ۪ن لیڈرن ہُنٛد یِم اتہِ ٲسۍ، سُہ اوس رایس صٲب اوس، میڈم اوس، باقٕے ایڈوکیٹ ٲسۍ، تِم کٔرِکھ اگنور. تتہِ ووٚنُکھ پیٹھۍ کِنی پیراشوٗٹ. تمہِ سۭتۍ گوٚو تشویش اکھ پٲدٕ یتھ علاقن منٛز تہٕ بارہمولہس منٛز. اَسہِ چھُنہٕ آز تامتھ کٲنٛسہِ پرٛژھمُتٕے یتھ. شیخ محمد مقبوٗل ییٚمہِ ساتہٕ اوس منسٹر، تنہٕ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ اَسہِ وُچھمُت نیشنل کانفرنس کانٛہہ تہِ لیڈرا بنان یتھ بارہمولہس کرِ آدمی. وۄنۍ کوٚر اَسہِ مشورن خوشی سۭتۍ اَسہِ اکھ نو نِحال یوٗتھ لڑکہٕ اکھ چھُ اَسہِ بارہمولہ أمۍ واریاہ محنت کٔر اَمہِ برونٛٹھ تہِ. اَسہِ سوٗنٛچ اَسہِ کٔر فٲصلہٕ یہِ أسۍ دِمو أمِس سپورٹ. اَسہِ چھِ أمِس منٛز اکھ روشنی کی کرن نظر یِوان. انشاء اللہ الرحمان یہِ کرِ لُکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ زبردست کٲم. أسۍ تھاوو توقع. بیٚیہِ چھُس بہٕ نیشنل کانفرنس کٮ۪ن تمامن ورکرن یہِ اپیٖل کران تِم تہِ یِن یتھ سۭتۍ. یہِ چھُ نوجوان لیڈر اَسہِ، یہِ کرِ واریاہ کٲم اَصٕل. باقٕے چھُنہٕ وَنُن کینٛہہ، وَنُن اوس واریاہ کینٛہہ مگر میٖڈیا کی طور سے جی السلام علیکم. میں گزارش کروں گا جو ہمارے لری ڈورا کے سرپنچ صاحب تھے ارشاد خان صاحب، تو وہ دو مختصراً کچھ الفاظ بولیں آج کی جوائننگ کے ریلیٹڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ توفیق صاحب جو ہیں 58 سے
शहर में थे, तो मेरा इनसे काफ़ी रिश्ता रहा है, क्योंकि 5-6 साल से हम आते थे, बैठते थे, तो कहीं भी ये कोई प्रॉब्लम देखते थे किसी की, तो सामने बुला के लाते थे, वहीं से समस्या हल करते थे। तो आजकल भी हमें ये चाहिए कि नौजवान अगर कोई आगे आता है, जिसके जहन में ऐसी सोच है और ऑनेस्ट है, तो उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि ये पार्टीबाजी जो है लोगों को यूज करते हैं, उसके बाद थ्रो भी कर देते हैं। तो बाकी ये चीज़ है कि जहाँ भी इनका कोई मसला रहा, कोई भी चीज़, जब भी इनको हमने कॉल किया तो वक्त वक्त पे मतलब हाजिर है। तो बाकी हमें इनसे बढ़ के कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस वक्त सब लोग अगर मिल के साथ देंगे तो बारामूला की तामीर तरक्की बहुत अच्छी तरह से चलेगी। तो और खास करके नौजवानों पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपका कोई जी सवाल है। साहब, डोर टू डोर कैंपेन की अगर हम बात करेंगे, वो आप कब शुरू करने जा रहे हैं? देखिए इंशाल्लाह ताला हम फॉर्म जब हमारा सबमिट होगा उसके बाद हमारा जो निशान मिलेगा उसके बाद हम डोर टू डोर जाएंगे। और अभी से हमारी कैंपेनिंग चल रही है। अभी से हम कल हिवन में थे, आज हम मलपोरा जा रहे हैं, परसों नमलन जा रहे हैं। और आपने देखा बारामूला टाउन में हमने शुरुआत की, अपने घर से शुरुआत की। मैंने आगाज़ घर से किया। पहले हमने यहीं इसी क्वार्टर पे मीटिंग की थी। और मेरी मुतबाना गुजारिश रहेगी मेरी नौजवान बहनों से, मेरे नौजवान भाइयों से, कि एक मौका आप अपने नौजवान भाई को दें, उसको कामयाब करें। और उसके बाद आप देखें कि हम आपकी उम्मीदों पे खरा उतरते हैं, नहीं उतरते। तौसीफ साहब, आप इस वक्त चेयरमैन भी रहे मतलब बारामूला के, तो क्या तरजीहात रहेगी बारामूला आवाम के लिए? देखिए बारामूला टाउन में बहुत कुछ करने के लिए, बहुत ज़्यादा काम करने के लिए। अगर आप ओल्ड टाउन की अभी भी सड़कें देखें, ओल्ड टाउन के आप जो कोचिंग देखें, गलियां देखें, तो वहाँ पे ड्रेनेज का बड़ा मसला है। मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को दिया है प्रपोजल कि ओल्ड टाउन में जहाँ जहाँ अंडरग्राउंड ड्रेनेज हो सकता है वो होना चाहिए। अक्सर तो बेशतर वन कशीर पटेल गसान जलाल सबन माल या बेन मालस मीर सबन मालस या ज़्यादा शरीफ गसान अक्सर चुप मैंने माज रटा अश्वन पस अश्य पर गंदगी आसन। अंडरग्राउंड ड्रेनेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जलाल साहब मोहल्ले में, अस्तरो एक ही जाए तक पाइप पेट कर उस कंक्रीट। तो वो मेरा प्लान है, जहाँ जहाँ पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज नहीं होगा अस्तरो तक तुम नजर उस पेट करो कंक्रीट, चाहे जो बाथरूम का वेस्ट है या बाकी वेस्ट है उसके ऊपर जो पूरा हम सेटअप करें ताकि लोगों को बदबू नहीं आएगी, बाकी चीज़ें नहीं होगी। उसके साथ साथ हमने जो मेरे दुकानदार भाई खसूसन बारामूला के, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो इनके दुकानों के आगे ये रेडे लगाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैंने उनसे भी गुजारिश की हमें इन स्ट्रीट वेंडर्स का भी रोजगार का ख्याल रखना है। मैंने ऑलरेडी एज अ प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल एक प्रपोजल दिया है आरएलबी को और डायरेक्टर साहिबा को भी दिया था तब, कि इनके लिए हमने जगह भी आइडेंटिफाई की थी, प्लेसेस भी आइडेंटिफाई किए थे, इनको हम रिहेबिलिटेट करें और उस प्रोसेस में देखें कितना डिले कर रहे हैं। मुझे लगता है ये होना चाहिए। 25 साल पहले डिसलोकेट शॉपकीपर्स थे जिनको हमने अड्डे में मैंने वो दुकानें बना के दी थी, अभी तक उनको दुकानें नहीं मिली। उसके साथ आज़ादगंज अड्डे को मैंने थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश की। वहाँ पे हमने एक फंवारा बनाया जो कि मेरे टेन्योर पे मैंने काम रखा था। और वो जो दुकानें थे जो शहर में, इनको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की। आप देखिए अभी तक वो बेचारे परेशान हैं। तो जो छोटे छोटे काम हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट काम है। हमारे को दिखाते हैं इतने करोड़ के काम, इतने लाखों करोड़ के काम। मुझे बताएं अगर हुआ होता तो ओल्ड टाउन में ये हालत होती। मुझे अभी भी याद है जिन गलियों में मैं खेलता था, उन गलियों में पहली बार हमने कंक्रीट किया, उन गलियों में हमने पहली बार काम किया। और दूसरी बात है कि मेरे काम करने का जो तरीका था वो लोगों को पसंद नहीं आया। उसके लिए मुझे उन्होंने ये अदम एतमाद किया बहुत टाइम। या आप देखिए अगर हम नारवाव की बात करेंगे, वहाँ पे तहसील दिया है ना, वहाँ पे तहसीलदार होता है ना गिरदवार होता है। नारवाव के लोगों के साथ एक मजाक किया गया है तहसील के नाम पे, एक शेड वो भी स्टेट लैंड पे बनाया है जहाँ पे ना कोई होता है। और मतलब ये नरवाव के लोग, मुझे कंडी के लोग इतनी बार हमें कंप्लेन करते हैं जनाब ये हमारे यहाँ तहसीलदार नहीं है, हमारे को बड़ी मुसीबतें हैं। और खुसूसन जो डेवलपमेंट जो लोकल लेवल के हैं, जो मैं हर जगह जाता हूँ और मैं उनसे दरख्वास्त भी करता हूँ, आप एक अपना खुद का मैनिफेस्टो बनाएं। अब मैं ना कोई मैनिफेस्टो आपके सामने लाऊं, आप मुझे बताएं आपके इलाके में मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, हमारा फोकस किस पे होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला डेवलपमेंट के फ्रंट पे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है बारामूला, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की और सोचने की ज़रूरत है। और अगर आप हम माने कि लोग कहते हैं कि जो भी यहाँ पर सियासतदान आया, चाहे एमएलए चाहे मिनिस्टर आए बारामूला से, तो उन्होंने बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी को हर हमेशा नेगलेक्ट किया डेवलपमेंट के हवाले से। बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी है, खाली ओल्ड टाउन और गरीब कोचिंग नहीं है, बल्कि बहुत सारे प्रोजेक्ट ग्रेटर बारामूला फोरम, ग्रेटर बारामूला प्रोजेक्ट है, वो भी मद्देनजर रखने की
क्या कुछ करने की जरूरत है? सर आपने बहुत अच्छी बात बोली है। ग्रेटर बारामूला फोरम जो है, या ये सॉरी ये जो ग्रेटर बारामूला का जो प्रोजेक्ट है, मैं छोटा था जब मैं ये सुनता था, हम तो स्कूल कॉलेज में थे, ठीक है। तो आज तक ये लोग करा नहीं सके, ये उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सके। मैं इन्हीं लोगों से कहता हूँ जो फेसबुक सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, जो कि ग्राउंड पे बड़े कम दिखाई देते हैं कुछ लोग। आप एक मौका दे दीजिए इस नौजवान को, आप देखिए हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं, हम अगली बार आपके पास वोट मांगने नहीं आएंगे। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने देखे जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे ये कैंडिडेट हैं, वो आज लोगों के घर रात को 11-11 बजे रात को जाते हैं, हाथ जोड़ के उनको वोट मांगते हैं। अगर उन्होंने अपने टाइम पे कुछ अच्छा काम किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आज लोग उसके पास जाते हैं, जनाब हम आपको कामयाब करेंगे। जब इनका दरवाज़ा बंद होता था आम लोगों के लिए, जब ये तमीज़ से बात नहीं करते थे। अभी मैं आपको एक जोक बताऊंगा कि एक ओल्ड टाउन से कोई मेरे पास एक नौजवान आया था, तो उसने बोला था इलेक्शन वेलेक्शन कहीं, तो करना कम तो वोट ही बस गए एक दो परेशानी है गई एमएलए सोबस निश वो आपने मुझे वोट दिया, चलो निकलो यहाँ से। तो और कुछ गालियां भी दी। अब ये सच उसने तो बेचारे ने बोला। उसके साथ साथ एक मेरे गुजर बरादरी का भाई था यहाँ पे, उसने बोला तो तही पे लेक तो त्रो वोट ऐसे वोट त्रो पे लेक। तो ये नई बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, जो कैंडिडेट आपके पास आएंगे, खुसूसन बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से अपील करता हूँ। एक कैंडिडेट हमारा सोपोर में रहता है, मुझे ये बताएं क्या बारामूला में इस लायक कोई नहीं है तो जनाब हम सोपोर से आएगा कैंडिडेट, फिर उसको यहाँ पे वो वोट मांगने आएगा। और उन लोगों से भी अपील करता हूँ, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को पहले सोचना चाहिए तो अशवा पान वर्मुल का अगर वर्मुल सरी नाबकारी ये आसान पता करती सोपर पे नफर प्रॉब्लम की तस्लीम अगर नफर असल आए अगर पे सोबर पे आए कुछ जाए ऐसे पर कम से कम गोड़ वो तुम मा पन्निस इलाकस मज अत लायक या करान या अमिस तुम पो मदद करें। और खुसूसन मैं बार बार यही बात दोहराता हूँ, आज और दोहराऊंगा। मैं पूरे बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से अपील करता हूँ, और खसूसन उन नौजवानों से जो आज तक वोट नहीं डालते थे, जो उससे दूर रहते थे, इन कैंडिडेटों का आप एक लिस्ट निकालें, गूगल करें किसको कितने केसेस है, कौन किस मामले में फंसा है, कौन किस घोटाले में है, किसने लोगों के पैसे खाए हैं, किसने काम किया है। परफॉर्मेंस के बेसिस पे, करेक्टर के बेसिस पे, उस बेस पे आप लोगों को आप उनको वोट डालो। उस बेसिस पे आप उस बंदे को वोट डालो जो आपके वोट का हकदार है, जो कल को आपके लिए खड़ा हो सकता है, जो आपके काम कर सकता है। तो अगर किसी को और कोई सवाल है, यहाँ अजान भी हो रही है, तो अच्छा होगा कि हम मुख्तसर करें। आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, जैसे आपने कहा कि ये रोड की बात की या की आपने बात की, तो एक मतलब आप यूथ के लिए यहाँ पे खड़े हुए, आप क्या सेटअप लाना चाहते हो यूथ के लिए, क्योंकि आप देखो कि बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है, एक नया सेटअप क्या लाना चाहिए आप? देखिए, सबसे पहली बात आप ये समझिए, एक आम फैमिली से एक नौजवान एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये यूथ के लिए एक बड़ी मैसेज है। जो नौजवान अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं, जो नौजवान ये समझते हैं कि अचुन सिफारिश कहीं, अचुन का रिश्तेदार नौकरी करान कहीं, अचुन का चलन कहीं, इस तुमने हंस खतर खुशी हंस कि एक आम नौजवान एक आम फैमिली से, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिसका कोई रिश्तेदार कोई बड़ा अफसर नहीं है, वो खड़ा होता है और उन लोगों के सामने खड़ा होता है जो पावरफुल लोग हैं, जिनके पास पैसा भी बहुत है, जिनके मकान भी बड़े खूबसूरत हैं, जिन्होंने जितने टाइम वो पावर में रहे हैं उन्हें तरक्की भी बहुत की है। तो अगर आज मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, मेरे पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो ये 5 साल में 5 करोड़ कैसे बन जाते हैं? और वो वोटर वहां का वहीं रहता है। अगर उसको बेचारे को शर्ट लगा के होती है इलेक्शन कैंपेन में, उसकी वो भी कट जाती है और उसके पास वो बेचारे कपड़े भी नहीं है। तो ये बता रहा हूँ मैं, इन्होंने हमेशा नौजवानों के साथ इस्तेसाल किया। जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के जदो अजदाद को गालियां देते थे, आज वो बोलते हैं मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर। जो लेक्चरार साहब हमारे, कभी उनको कसम रखें, जो पीडीपी के कैंडिडेट है उनको बोले, आप दिल पे हाथ रख के बोलो कि आपने क्लास कब दिया, आपने बच्चों को कब पढ़ाया। जो लोग अपने जॉब के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, वो कौम के साथ क्या इंसाफ करेंगे? ये अगर इलेक्शन लड़ना होता है, हर एक का हक है, लेकिन आप नौकरी छोड़ के आ जाओ। आपने कब स्कूल में पढ़ाया, आपने किस क्लास में पढ़ाया, आपने किस बच्चे को पढ़ाया, आपने किस बच्चे का हाथ पकड़ा जो गरीब फैमिली से है, उसको बाहर भेजा, उसको फॉरेन स्टडी के लिए उसको स्पॉन्सर किया। जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, मैं खुल के आज बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से बोलते हैं तुम कथी करा कांस खिलाफ, शाद शरीफ लोग मत ये माल वाल ला जैसे रात बैठे इतरा मतलब ये कार उस तगन कहीं। मैं इनको बोलता हूँ,
वो मतलब मुझे बहुत सारे लोग बोलते खुल के बताओ जो कैंडिडेट है। मैं अब लोगों पे ही छोड़ता हूँ, जो हमारे पास कैंडिडेट है खुदा के वास्ते उनका वेरिफिकेशन करो, उनको बोलो कि आप रॉन्ग नंबर, तो उनके साथ वाबस्तगी ना रखें, क्योंकि अगर उन लोगों को आप वापस इक़्तिदार में लाते हैं जिन्होंने आपके साथ तमीज़ से बात नहीं की, जिन्होंने आपके काम नहीं किए, कल को ये वही रुख इख्तियार करेंगे जो ये 5 साल के लिए रखते हैं। जो इनका रुख इलेक्शन के टाइम होता है, वो रुख इनको इलेक्शन के जीतने के बाद नहीं होता है। तो एक सवाल है मेरा, आपके टेन्योर में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ क्यों नहीं किया गया? आप देखिए बस स्टैंड में जो है गंदगी जमा रहती है, या आप देखिए टोपों से गंदगी आती है, वो जटी जो एरिया है वहाँ पे जमा होती है। आपको जब जब आपका टेन्योर था उसमें क्यों कुछ नहीं किया गया? आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। हमने देखो, जहाँ पे सफाई के साथ रिलेटेड कोई चीज़ होता है, मैं आपको एक छोटी सी आप एग्जांपल दूंगा इस पे। जब आप यहाँ से निकलेंगे, आप पुल के सामने खड़ा हो जाइए और आप देखिए वहाँ पे कितनी गंदगी है। क्यों है? हमने इस कॉलोनी में हर एक को, मैं पर्सनली मैंने अपील की थी, आप डस्टबिन ले लीजिए। आप अपना डस्टबिन अगर होगा आपको, वो भी चलेगा, 100 रुपये महीना देगा। क्या लगता है आपको ये ज्यादती है किसी के साथ अगर कोई आदमी 100 रुपये एक महीना देगा? अब अगर कोई गरीब हो हद से ज्यादा, उसको हमने कहा कि उसको पैसे ही नहीं देते, इसको ऐसे ही उठाओ। मैंने म्यूनसिपैलिटी में कहा था लोगों को, आप उनसे पूछिए। पहले तो हमें सिविक सेंस अपने आप में लाना। आप पूरी पूरी आई विल कम टू योर पॉइंट, आई जस्ट हैव पेशेंस लाला साहब, मेरी बात सुनिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ, हमने एक मैकेनिज्म स्टार्ट किया था डोर टू डोर कलेक्शन का। हमारे जो म्यूनसिपैलिटी के एम्प्लॉयज थे, वो ओल्ड टाउन में पूछे, ऐसा मस्तूरात तमाज गसन घर मान समझावा, सोर्स सेग्रीगेशन कीजिए। जो 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 ड्राई वेस्ट है, वट वेस्ट है, उसको अलग डालिए, हम अलग से गाड़ियां लाएंगे। उसके साथ हमारा अभी भी R&B में प्रपोजल है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो लगेगा वो जटी पे लगेगा। उस पे काम ऑलरेडी चल रहा है। उसमें क्या कहते हैं, ये प्रोसेस हुआ है, लैंड हमको वो नोटिफाई हुआ है। उसमें जो जो डिपार्टमेंटल जो जो वो होता है, डिपार्टमेंट फाइलें जाती है, ड्यूकॉम ऑफिस में वो फाइल गई थी। जो जो ये क्या कहते हैं इसको, पोल्यूशन बोर्ड की सर्टिफिकेट हमें मिली है, उस पर काम चला। लेकिन बदकिस्मती से जो 2 साल म्यूनसिपैलिटी में मैं रहा, जिस तरह से मुझे खींचातानी की गई, मैं उस तमाम गोड था उन ख्याल वो काउंसलर नाराज, हाँ वो कश में था करें, वो गो का इस मूड खराब, उन का चाय कप चित गो परेशानी गई ना कॉन्फिडेंस मोशन। आप ये देखिए, 2 साल में अगर किसी का बस चलता तुम करा दा नो कॉन्फिडेंस मोशन। और आप लाला साहब, आपने भी देखा है, यहाँ जो मीडिया वाले हैं, सब लोगों ने आपने स्टोरियां की है म्यूनसिपैलिटी के काम के रिलेटेड, जो अच्छे काम, जहाँ पे आपको क्रिटिसाइज करना था आपने किया। आप, मैं मीडिया पे छोड़ता हूँ क्योंकि आप फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हो, आपका फर्ज बनता है आप सही चीजें दिखाएं, जायज चीजें दिखाएं, जिससे कल को लोगों को भी बेनिफिट हो। आप ये दिखाएं कि हमने बारामूला में काम किया कि नहीं किया। अगर मैंने काम नहीं किया होता तो आज मैं आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देता, क्योंकि मुझे अपने लोगों ने बोला कि आप इलेक्शन लड़िए। फिर जो हमारे कंडी से भाई हैं, नारवाव से जो हमारे दोस्त हैं, वो आए, बोला नहीं तो सी साहब हमने आपका काम देखा, आपका जज्बा देखा। सबसे बड़ी चीज होती है कि आप काम करने का जज्बा रखते हो। आप R&B में जाइए, आप किसी भी मुलाजिम से पूछिए, उसको एक किसी भी रैंडमली पूछे कि तौसीफ रैना 2 साल में R&B कितनी बार आया और किस काम के लिए आया, DC ऑफिस आया क्या किसी रिश्तेदार के काम के लिए आया। आज तक जो डेवलपमेंट यहाँ हुई, वो कुछ परिवारों की डेवलपमेंट हुई, उनके रिश्तेदारों की डेवलपमेंट हुई। वो सारे बड़े बिजनेसमैन बन गए, 1 लाख ठेकेदार बन गए, वो बहुत बड़े लोग बन गए, लेकिन जो आम लोग थे वो गरीब के गरीब रहे। और बहुत में एक सवाल है, तो देखिए, मैं लास्ट में बताइएगा। पहले मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि जो बारामूला टाउन के इर्द गिर्द इलाके, खासतौर से अगर हम नारवा बेल्ट की बात करें, तो वहाँ के डेवलपमेंट के हवाले से कहना चाहेंगे आपसे, क्या रहेगा आपका मंसूर? और साथ में ये चीज़ है कि वो जहाँ पर पूरी बेल्ट है नारवा का, तो वहाँ पे जो गरीब है उनको फ्लाइट रेट के हिसाब से मिल जाती है, जो कि उस लाइफ में है, उसमें आप कोई हेल्प उनको करेंगे? देखिए देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊं। मैं कल मलपुरा में, हीवन में था, आज हम मलपुरा में जा रहे हैं। मैं वहाँ के यूथ के, वहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ, और मैंने ऑलरेडी बात भी की है, जो आपके इलाके के छोटे छोटे बड़े बड़े मसाइल है, वो अभी से आप नोट कीजिए और प्रायोरिटी में काम रखिए। चाहे हम इलेक्शन लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं, काम तो करवा सकते हैं, मतलब पुश करवा सकते हैं। आजकल सामाजिक कारकुन के हिसाब से मैंने काम किया है, हम काम करेंगे। आप देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में इको टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। संगरी कॉलोनी में ऊपर देखिए, वहाँ पोटेंशियल है। आप नमलन में देखिए वाटरफॉल, आप गवास में देखिए, जो जो हम खाल चढ़ते हैं ऊपर, पेट खाल नमलन से ऊपर,
आप वहाँ देखिए, आप हाजीबल में देखें, टूरिस्ट अट्रैक्शन हो सकता है, इससे रेवेन्यू बढ़ेगा, उससे हमारे नौजवानों का रोजगार बढ़ेगा। और उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट के लिहाज से काम है, जो रोड हैं, जो फंड है, मैंने अभी से लोगों को बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ आपके मुश्किलात आते हैं, हम अभी से उन पे हम कोशिश करेंगे वो काम होने चाहिए। टूरिज्म का बड़ा हमारे पास बारामूला में, आप देखिए हमारी जो गुलनाथ पार्क है या जो हमारी इको पार्क है, वहाँ पे कुछ नया करने की जरूरत है, जहाँ पे अट्रैक्शन हो, जहाँ पे नौजवान आए, जहाँ पे लोग आए, वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। वहाँ पे हट्स बने हैं, उन हट्स में कोई रहता ही नहीं है, आप देखिए हालत होगी। तो मैं कहता हूँ जिस तरह से हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बेचारे परेशान होते बिजली बिल से, उनकी कमाई कितनी है, वो बिजली बिल कितना भरें, मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि ये जो बीपीएल जुमरे में आते हैं, उनको उन पे नजर षानी की जाए, और जो लाखों लाखों जो बिजली बिल का जो फीस चढ़ा है, वो कहाँ से लाएंगे? एक जो बेचारा रेडे वाले, एक मजदूर आदमी, वो कितना बिजली बिल भरेगा? तो बिजली के रिलेटेड मेरे जो मसले होंगे, मैं उनको उठाऊंगा और कोशिश करूंगा उनके साथ इंसाफ हो। और जो जो काफी लोग हैं, जो बेचारे जो गरीब लोग हैं, उनको 10-10 साल की, 8-8 साल की क्या कहते हैं, वाटर की बिल पेंडिंग दिखाते हैं मेरे पास काफी, उनको हम एमनेस्टी दिलाएंगे। और उसके साथ साथ खुसूसन जो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, जो बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, एक नौजवान को यहाँ पासपोर्ट नहीं दिया जाता है, एक नौजवान को यहाँ करेक्टर वेरिफिकेशन नहीं दी जाती है, उसके बाप और उसके चाचा के बेसिस पे। एक नौजवान पढ़ लिख के जाना चाहता है बाहर, वो कहता है कि मैं काम करूंगा, मैं कहीं पे नौकरी करूंगा, लेकिन उसको पासपोर्ट नहीं मिलता। मैं एक एक बच्ची की मैं आपको